Yes, we are live now. Welcome back, guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back for English class today. Yes, guys, come to the page number 73. If you have a fad book which contains both the parts, I have one of the oldest book of 10 syllabus. If you have that, you please come to the page number 73, or else go to the index and search. Yes, all of you. चलिए जल्दी निकालिए. What is moral action? Have you all reached, everybody? What is moral action? Shall we begin? Come on. So honesty is the best policy today. What is the need of our is that each and everybody must have the morality, which is very much needed today in this selfish and deception world. इस धोखेबाज और खुदगर्ज दुनिया में हमें वफादार लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है. So about this we're gonna read today, which is written by our Gandhiji. Yes, okay. When can it be said that a particular action is moral? See, guys, we go on active doing n number of activities from morning till night, but which of our act can be called as a moral act? How can you consider it a moral? कौन से भी हम जितने भी काम सुबह शाम तक करते हैं, वालेकुम सलाम कुलसुम, तो हम कौन से काम को हम मॉरल कहेंगे? Guys, if you see, most of our actions are non-moral. ज्यादातर हमारे जो actions है वो non-moral है. More rare or few our actions are moral, and some are even immoral as well. So guys, there is a difference between these two, these three: moral, immoral, non-moral. तीनों में फर्क है ज़हन में रंदे आप लोगों के, ठीक है? There is a chief difference between this, among these three. So first, moral तो ऐसा काम करना, ऐसा नेक काम करना जिसके पीछे हमारा कोई मोटिव नहीं रहना. We should not have any kind of motive, guys, behind our any kind of our moral act. We should not have any kind of benefit behind it. माने नाम कमाना है या लोगों को मालूम होना मैं दिल वाला हूँ, मैं मदद करने वाला हूँ, तो ये चीज नहीं आना, तो वो अगर वो चीज हमारे दिमाग में आती है, अगर वो चीज नहीं आती है तो मॉरल एक्ट है. अगर नाम कमाना है, लोगों के सामने हमारा इज्जत बढ़ना, मैं दान करने वाला हूँ, मैं लोगों को गरीबों को खाना खिलाने वाला हूँ, अगर ये चीज सोचकर अगर आप मॉरल एक्ट करते हैं तो दैट इज नॉन मॉरल. अगर आप किसी गरीब को जो आपके पास पैसे मांगने आता है, गरीब या खाना दियो बोल के आता है, या पैसे मांगने आता है, भिखारी वगैरह जो भी, तो उनको अगर आप आम खैरात अगर आप नहीं देते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है. अगर उन्हें झुड़गियां देते हैं तो दैट कम्स अंडर इमोरल एक्ट. तो तीनों में अलग है गाइस. गरीबों को खाना खिलाना मॉरल एक्ट है बगैर कोई नाम और शोहरत के, माने बगैर किसी को दिखावे के अगर आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं दैट इज मॉरल एक्ट. अगर आप गरीबों को खाना खिलाने के बहाने अगर अपना नाम, अपने शोहरत बढ़ा लेना चाह रहे हैं लोगों के सामने कि इन्हों बहुत दयालु है, इज वेरी मर्सीफुल, अगर ऐसा आप बता लेना चाह रहे हैं दैट इज नॉन मॉरल. अगर आप गरीबों को झुड़कियां देते हैं तो दैट इज इमोरल. विल हैव अ लुक. गुड मॉर्निंग प्रज्वल. So in asking this question, the intention is not to contrast माने show the moral with immoral actions, but to consider many of our everyday actions against which nothing can be said from conventional माने customary, conventional standpoint माने point of view, and with some regard as moral. So guys, it is not, the Gandhiji is not trying to show you people that what is the difference between moral and immoral, but Gandhiji want to show you people that whatever the activities we do, whatever the acts we do from morning till night, so most of them are non-moral, okay, and few among them are as considered as moral, and which you can call as moral, that Gandhiji is trying to express to people. So most of our actions are probably non-moral, that do not necessarily involve morality. तो ज्यादातर इसके अंदर आपको morality नहीं देखने मिलेंगी. For the post part, we act according to the prevailing माने existing conventions माने rules and regulations. Such conventional behavior is often necessary if no such rules are observed. Guys, if we are not going to follow the rules and regulations of the society or the community or the country or the state where you people are living, then that is compulsorily going on leading to anarchy. उससे compulsory anarchy होगा. Anarchy means guys state of disorder, माने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेगा, खाली लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कोई कानून, कोई
ऐसा रुकावट चीज कोई सजा देने वाला नहीं रहेगा. Good morning, all of you. So, anarchy would be the result in society. Social intercourse means communication. Intercourse means communication would come to an end. If no person is going to fear from anybody, if no person is going to love anybody, if no morality remains, then compulsorily intercourse, that communication is going to end. माने अगर कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, कोई किसी से मोहब्बत ही नहीं रखेगा, रहम ही नहीं रखेगा, एक दूसरे से अगर किसी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सिर्फ लोग एक दूसरे को अगर खाली मारना चालू करेंगे, खत्म करना चालू करेंगे, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है बोलकर, तो कौन डर कर किससे बात करेगा? So communication is compulsorily going to end. Still the mere माने just only observance माने watching of custom and usage cannot properly called as morality. माने सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, चलो हम भी जाके नमाज पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? If you are doing customary, माने इस्लाम बोलता है 5 से नमाज पढ़ना है, गरीबों की मदद करना है, हज को जाना है, समझ में आ रहा है? Whatever our 5 different rituals we have to be followed, अगर हम वो सोच कर हमको करना अच्छा को कर करेंगे, हम माने बोल रहे हैं तो कंडीशन है, नहीं तो मुसलमान नहीं है, कहते वो नहीं है, अगर हम इसमें भी अगर हम कर रहे हैं, that is not considered as moral, guys. We have to think it's our duty, it's our own duty or responsibility to do all these good things what has been said by Allah Ta'ala as well as Pyare Nabi, that has to be followed by everybody. And if we do not follow it, then we are going to face difficulty not only in khabar, that is grave, but also on the doomsday, that is the day of judgment. माने क़यामत के दिन भी हमें इसका तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, and will even face the different kind of difficulties after death. तो ये सब चीजों से अगर बचना है हमें, तो compulsorily we have to go for this morality or moral actions. Now guys, second para, a moral act must be of our own act. ये भी होता है हम चीज़ का याद रखें. Moral act वो होता है जो अपने दिल से निकले. It should not be of somebody's. अरे अच्छा सा करना, अच्छे काम आ रहे थे, अरे उन्हें बोले ना, अरे चलो करेंगे जान दे, वालेकुम सलाम नदीम, तो उन्होंने बोले हम करेंगे बोले, तो that is not going to be considered as moral act, guys. We need, that needs to be released from our own soul. माने हमारे खुद के आत्मा से, हमारे खुद के दिल से, हमारे खुद के कंसाइन माने जमीर से निकलना चाहिए. That is moral action. Okay, so must spring माने release from our own will माने wish. If we act mechanically, there is no moral content in our act. Such action would be moral if we think it proper to act like a machine to do so. For doing so, we use our discrimination. So guys, only just for the purpose of showing or just for the purpose of that somebody said us to do it, if we are going to do like that, then that is not going to be considered as, is considered as moral action. फैजान प्लीज आज की क्लास डिस्टर्ब मत करो, कोई भी रहने दे, प्लीज लेट हिम लिसन. अगर वो सुनने आए हैं क्लास तो सुनने दे प्लीज. कल की क्लास ये गैर जरूरी डिस्टर्बेंस की वजह से कल की क्लास डिलीट करना पड़ा है सब पूरी ज्योग्राफी की. प्लीज कोई भी रहने दे, प्लीज डोंट गो ऑन रेस्पॉन्डिंग एनीबॉडी. आप चैट जो बॉक्स है लाइव चैट्स का, उसको आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट खाली वीडियो रखिए, आप उससे मत देखिए. जब मैं क्वेश्चन डालूंगा बोर्ड पे, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप कमेंट्स कीजिएगा. प्लीज डोंट गो ऑन कमेंटिंग ईच अदर्स, प्लीज. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. Try to listen the chapter. So we need to go on observing that whatever the act we are doing, whether it is mechanical, माने करना है कुछ भी मशीन के तरह करना है, कि वाकईतन हमारे दिल से, हमारे विश से, हमारे विल से निकला है. That we need to be observing over this, guys. Then we should bear in mind the distinction, माने difference between acting mechanically and acting intentionally. There is a difference again, guys. Mechanically, intentionally, man, the act which is released, or the act, the morality which is released from your heart, or the good act what you are doing is released from your own soul or heart or wish, then that is considered as intentional act. If a mechanical act means if you are going to copy a moral act by seeing others that he is doing, I should also do to get prestige, to get name, to become famous, then that is called as mechanical act, guys. And if, for example, if a teacher is telling you people to do good work to get a good result, then that is teacher saying you intentionally, and you are just following the teacher, whatever they are saying, then that becomes a mechanical act. If you are doing it by your heart, then it will also become an intentional act, guys. Okay, so that depends upon you, that वो
how you gonna take it and how you gonna act it. Walaikum salam, Mr. Nobita. So we should bear this, guys. We should try to find out the distinction or difference between this mechanical act and intentional act. It may be moral of a king to pardon a culprit. Culprit mane gunehgar. Pardon mane forgive, maaf karna. But the messenger bearing the order of the pardon place a mechanical act, the king's moral act. But if the messenger were to bear the king's order, considering it to his duty, his action would also be considered as a moral one. So guys, the difference has been already explained here, that if a king is trying to forgive a particular culprit, माने एक जो भी इंसान है जो गुनाहगार है, जो एक सजा गलत काम कर रहा है, अगर किंग उसको दिल से माफ कर दे रहा है, जा भाई तेको आगे से तो ये गलती नहीं करना, अगर दिल से उसको माफ कर दे रहा है, दैट इज मॉरल एक्ट. अगर छोड़ दियो बोल रहा सिपाहियों को, तो सिपाही बोल रहे हैं, हमारे बॉस बोल रहे हैं छोड़ देंगे, तो उन्होंने मैकेनिकल एक्ट करें. अरे बॉस बोले हम बॉस की बात सुनना, ये हमारी ड्यूटी है. इफ दे थिंक लाइक दैट, then their act also becomes moral. Okay. How can a man understand morality who does not use his own intelligence and power of thought, but lets himself be swept, mane cleaned along like a log, mane trunk of wood by a current? Sometimes a man defies mane meeting together, sorry, challenge, convention mane meeting together, meeting, gathering, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए आप, and acts on his own with a view of doing absolute good. Such a great hero was Vander Philip. Mane, yeah, okay, I'll tell. So whatever the act we are doing, guys, that is going to be considered by ourselves, that whether it is a mechanical or intentional act. Apart from that, that whatever the work we go on doing, that we need to think with our own intelligence. हम दूसरे बोल रहे अरे तू काम कर रहा है अच्छा है, मॉरल एक्ट है, अरे तू नॉन मॉरल है, एक्ट तो कैसा कर रहा, दीवाना है क्या, अखलाक है तेको, ऐसा क्यों कर रहा गलती तू, कोई अगर हमारे बोल रहा बोले तो हमारे इतना बड़ा बेवकूफ कोई नहीं. So we have to judge ourselves. We have to use our own intelligence to confirm what the act we are doing, whether is a mechanical or, yes, okay. So whether it is a mechanical or intentional act, that has to be taught everybody. So Vander Philip का एक example दिया है. Vander Philip के ऊपर भी क्वेश्चन आया, what Vander Philip told or what he has done, addressing an assembly of the people. लोगों के सामने पूरे ठहर के बोले उन्होंने कि one said, till you learn to form your own opinions and express them, I do not care much what you think of me. सुन रहे? अब फॉर एग्जाम्पल आप बोल रही हैं सर आप अच्छे हैं, रफीक सर अच्छे हैं, बोले ठीक है, तो आई बिलीव व्हाट यू पीपल आर टेलिंग. अब आपको कोई आके बोले रफीक सर बहुत बुरे हैं, कैसे है, घमंडी है, मोतबरी है, खाली वो ये क्या भी बोले, एंड इफ यू पीपल बिलीव्ड एंड सेइंग मी सर आप ऐसे भी है सर हम सुने, तो व्हाट आई विल से यू दैट I don't know what other people have told you, but I just believe in you people that what you think about me. So this is what Vander Philip said once. So यही बोले लोगों को कि भाई दूसरे कुछ ही बोले तो मेरे बारे में गलत सोचेंगे, that is not going to affect me, that's not at all matter to me. I just think what you believe, what your belief is about me. So I do not care much what you think of me. Thus when we call care only for what our conscience says. Conscience माने हमारा ज़मीर, हमारे अंदर का जो ज़मीर होता है, जो धड़ धड़ मार लेता है. आप देखिए कभी गौर करेंगे, you might have observed, ज़मीर के जिंदा रहने के मरने की अलामतें आप कभी गौर करेंगे. गुनाह करने के टाइम कभी कभी किसी का धड़ धड़ मार लेता है, नको 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 नको, गलत है, तो आपका ज़मीर बहुत मजबूत है. समझ में आ रहा है? अगर आप गलती करने के टाइम आपको एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ बोलकर, तो ज़मीर आपका थोड़ा कमजोर है. अगर गलती हो गई उसके बाद भी आपको ख्याल नहीं आ रहा, कुछ दिनों के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि अरे मैं गलत करा, मैं नहीं करना था ऐसा, मैं नहीं करनी थी, मैं चुपिश करी है सब को, आपको एहसास हो रहा था आपका ज़मीर जो है कोमा में, फिर भी जिंदा कर सकते हैं उसको भी अपन. मेहनत करना ईमान के ऊपर, ठीक है, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत बनाओ बोलकर हर दुआ में, तो बिल्कुल यू विल इवन बिकम स्ट्रांग on your own religious belief. So I do not care much of what you think of me. Thus when we care only for what our conscience says, then alone we can be regarded to have stepped on the moral road. So guys, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, यहाँ एक्सरसाइज में है, देखिए क्वेश्चन कि when can we regard to have on क्या है क्वेश्चन, when can the messengers be when according to Gandhi ji we regard ourselves. यहाँ देखिए guys, क्वेश्चन नंबर 7 है
When according to Gandhi ji can we regard ourselves to have stepped on the moral road? माने कब हम अखलाक के रास्ते पर आ सकते हैं? तो कब आ सकते हैं? When we all care only for what our conscience say. हम तब आ सकते हैं जब हमारा ज़मीर क्या बोलता है, अगर उसके हिसाब से हम जिंदगी जिएंगे तो कंपलसरी we will come on the moral road. Alone can be regarded to have stepped on the moral road. So this is what the question guys already asked. We shall not reach this stage as long as we do not believe and experience the belief that God is within us. और जब तक हम अखलाक के रास्ते पर, जब तक हम moral road पे नहीं आ सकते, till then we go on feeling that God is within us. माने God is around us, God is watching us. God के लिए 3 वर्ड है, मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं when I was teaching about temple and the vachana, temple and the body, sorry, vachana poem. जब मैं पढ़ा रहा था बसवन्ना की, मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं कि ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह हर जगह मौजूद है, प्रेजेंट एवरी. ओमनीसेंट, अल्लाह इज ऑल नोइंग, अल्लाह हर चीज जानने वाले हैं. ओमनीपोटेंट, अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल. We have already told people. So this is what, अगर हमें ये, अगर हमको ये मालूम हो गया कि मैं कौन से भी कोने में बैठकर कुछ भी गुनाह करूंगा, कुछ भी गलती करूंगी, तो कंपलसरी मुझे खुदा देख रहे हैं, तो कभी हमारे से गलती नहीं होती. इट्स माय गारंटी. ओके. So an experience believe that God is within us, the God of all is the ever present witness to all our acts. माने हमारे हर एक्ट्स को अल्लाह ताला देख रहे हैं. और कल क़यामत के दिन हमारे जिस्म का हर हिस्सा टेस्टिफाई करेगा. टेस्टिफाई माने एक्सेप्ट करेगा, कन्फेस करेगा अल्लाह के सामने. हम बोलेंगे नहीं अल्लाह मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो मुंह बंद हो जाएगा और हमारी आंखें बोलेंगी और अल्लाह मैं रिकॉर्ड करी हूं ऑलरेडी. ये उंगलियां बोलेंगे अल्लाह ये हाथों से गुनाह किए, ये पैरा बोलेंगे अल्लाह गुनाह की तरफ गए हैं, मैं खुद इसका गवाही देता हूं. Getting? So each and every part of our body is going to testify at the time of doomsday, क़यामत के दिन. और वहां पे एचडी, बड़ा एचडी का 500 या 200 मीटर का तो बड़ी टीवी रहती है वहां, जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड मुनकिर नकीर आपके जो फरिश्ते हैं पूरा रिकॉर्ड करे सो डिस्प्ले करेंगे वहां. मैं नहीं करा बोलता डिस्प्ले, देख लीजिए ये दूसरे है आप पीछे. So this is going to be done guys, so we need to be very much aware about this. Okay guys, Kulsum Fatima was telling me something to tell about short about the paragraph what is being taught. So guys, in first paragraph we come to know that what the moral act is and what is the difference between moral, immoral and non-moral. We have already learned guys, a moral act is one act which is released or which come out from our own will or wish is called as moral act. And the act which is being done just by seeing others as customary, माने दूसरे लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल के अगर हम, if we go on doing it, then that is considered as non-moral act which is done, that is moral, but the moral act which is done for the purpose of material benefit, for the purpose of prestige, for the purpose of respect and name and all, then that is considered as non-moral. आपके पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है गाइस, what is non-moral action? पहले क्या बता रहे थे, गांधी जी से that most of our behavior, most of our actions are normally non-moral. हमारे जो सारा सुबह से शाम तक जो भी हमारे एक्ट्स होते हैं, neither moral nor immoral, these all are non-moral. मैं इससे पहले बता दूं आपको कि moral immoral में क्या फर्क है गाइस. हम दिल से जो काम करेंगे, अच्छा जो भी हम काम करें, that is moral act. अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये सोचते हुए करेंगे हमारा नाम होना, हमारी शोहरत बढ़ना, then that is non-moral act. And if you are abusing, if you are scolding, if you are simply insulting the people, then that comes under immoral act. What is the difference between mechanical act and intentional act guys? थर्ड क्वेश्चन आपके रीडर के अंदर जो है उसका भी आंसर ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही है कि that whatever the action we do, if we are doing by our own will and wish, then that is known as intentional act. If the act which is being done by the order of others, then that is called as mechanical act. I'll give you an example guys. If a student is coming to school by considering himself that it is his responsibility to reach school by 8:45 because from 9 o'clock his class is going to start. If he's thinking that it is his duty to be there before 9 o'clock, then that is intentional act. And if he is scaring from the teacher that if I go after 9, then my teacher will not allow me to sit in the classroom and they will punish me. If in fear he is going to do that act, then it is not called as moral act. Again, act should be even without fear and without compulsion. ना मजबूरी होना, ना डर होना, खुशी से आना, दिल से करना, वो काम को हम moral बोलेंगे.
अब मैं बताया अभी कि भाई दैट अ किंग, व्हेन अ किंग ऑर्डर्स, सेकंड पैराग्राफ में यही देखिए अपन कि moral act must be of our own, we should come from our own will and wish, and we should be able to discriminate between moral and immoral and non-moral act, and the act which is done by our own wish and will, then that is called as intentional act. If a king forgives a particular culprit, then his act is known as moral act. If the order which is followed by the person or followed by the soldiers, then that is being known as non-moral action. If they are just thinking that it is our king said and we have to follow it, then that is non-moral act. And if they consider that it is their duty to follow the king's rule or king's order, then that it becomes again a moral act. This is what we have read, guys. तो ये तीन questions तो हो गए. Give an example of each conventional behavior and moral act. The first paragraph discusses what is non-moral, what is not a moral action. Second paragraph gives you one important criterion to decide what considered a moral action. What is criterion? When can a messenger's act become a moral action? If he considers duty as a moral act. ठीक है. और थोड़ा बहुत आप exercise के question आंसर पढ़ लेंगे तो you'll get all the remaining answers. Okay. And how can we understand that who does not will intentionally? It is our duty, guys, to discriminate or to differentiate or to distinct what the action is being done, whether they are moral or non-moral और immoral. ये हमारी खुद की इंटेलिजेंस से हम यूज करना कि जो भी हम काम करते हैं सुबह से शाम तक. मैं इससे पहले बता चुका हूं कि my lexicographer, my teacher, one who writes dictionary, he said me that Rafi, if we do not give 10 minutes to ourselves to judge what we are doing from morning till night, then we are losing the chance of meeting the best person of the world. कि मेरे उस्ताद बोले बेंगलुरु में जब मैं कोर्स करा था नेशनल लेवल इंग्लिश कोर्स, तो बताए कि अगर हम रोजाना 10 मिनट अपने आप को नहीं देते तो हम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खोएंगे. और हम हमारी जिंदगी कैसा जी रहे हैं अगर हम खुद उसके ऊपर अगर हम गौर और फिक्र नहीं करेंगे तो हमारे तो बेवकूफ कोई भी नहीं है. फिर जानवरों की जिंदगी हो गई हमारी. जानवर भी रात में रोज कुत्ता सो रहा है, सुबह में उठा तो खाना मिल रहा है, ऐसा तिरगी तिरगी इधर उधर फिर रहा है, फिर रात में आकर फिर क्या तो मिला तो खा रहा है, सो जा रहा है पागलों सरकार, जानवरों सरकार. और हमारी हालत ही वही हो गई. We are not at all going on realizing or just analyzing our own life, that how we are leading it. हम कैसा जी रहे हमारी जिंदगी, हमारा कोई हमारा ऑब्जर्वेशन ही नहीं है उसके ऊपर. We need to go on observing it, and we should even go on discriminating. माने अलग करना है moral, non-moral, immoral क्या है. And now, guys, one more thing about Vandal Philip has been expressed, that he said that whatever you think about me by listening to others, it's not going to affect me, or it did not at all matter me. It matters only when you go on telling me about me by your own will and wish, or what you understand about me, till you learn to form your own opinions and express about me. I do not care what you think of me. माने आपके दिल से आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अब तक आप देखें. ठीक है. सी गाइस, कभी भी याद रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आंखों से देखा और कानों से सुना भी गलत हो सकता है. It's not essential that whatever we watch, if that is going to be right, and whatever we say, or sorry, whatever we listen, that is going to be even right. It's not so, guys. See, some people do some wrong thing due to some compulsion. कुछ लोग कभी कभी कुछ गलतियों से, कुछ मजबूरियों से कुछ लोग कुछ गलत काम भी कर देते हैं, मगर उनकी उस वक्त की मजबूरी को हम नहीं देखते, खाली उनको गलत काम करे बोलकर हम देख लेते. और मैं ताजुब हूं इस बात के लिए कि इंसान हजारों अच्छे काम करने के बाद कभी गलती से भी अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हाईलाइट किया जाता है, मगर उसकी अच्छाई को कभी नहीं देखता. हमारे कोई एक दोस्त है, हमारी कोई एक सहेली है, और उन्हें हमेशा मत अच्छी रही, कभी गलती करते उन्हें ऐसी है क्या बोले, चुप थोड़े दिन दिखावा अच्छे का नाटक करी थी, अब उन्हें खराब हो गई. देख, दिस इज रॉन्ग, गाइस. By only just one mistake, you are judging him and finalizing that he or she is completely wrong. That's wrong, guys. See, we all are made up by the soil. क्या बोलते हैं हमारे, my lecturer used to say, political science lecturer मेरे कर्नाटक कॉलेज में, he used to say कि who commits the mistake? Man commits the mistake. गलती किससे होती है? इंसान से होती है, बोलते थे हम. तो हम अपने आप, हम थोड़ी फरिश्ते हैं गलती नहीं होने के वास्ते. We are human beings. Compulsorily it happens. Getting, see guys, I go on doing different kinds of work from morning to night. Then I get tired, so I don't wake up by Fajr namaz.
but somehow I managed to recite khaza and leave home, or else I'll not leave before performing the namaz. It's not so that it's compulsory to perform at the time. सही टाइम पे पढ़ना जरूरी है, फर्स्ट पढ़ना है खजा। अल्लाह खजा का 200 साल तक अल्लाह ताला दोजख की आग में जलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ दूं, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता मैक्सिमम फजर की नमाज, आज अल्हम्दुलिल्लाह हुई, तो फजर की नमाज आमतौर पे खजा पढ़ के निकल जाता हूँ। ये सुबह शाम तक काम करे थक जाने, तो अब अरे सर बेनमाजी है, फजर की नमाज ही नहीं पढ़ते सर। It's not so, guys. So you cannot judge a person by his only one act. I never leave, alhamdulillah, namaz. I know that because of namaz only I got this name, fame. Allah Ta'ala has ascended me to this level because of my good deeds and worship, and Allah Ta'ala is happy with me and I'm very happy with that. समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि आप एक एक्ट से किसी को ये बोल दें, समझ में आ रहा है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पोजीशन, ट्राई टू think yourself on their position in that occasion, that what circumstances has made them to do that wrong thing. Keep in mind, okay, before judging anybody. Yes, yes everybody. So now we are moving towards third paragraph. It is not enough that an act done by us in itself good, it should have been done with good intention to the good. अब देखो हर एक चीज है, अच्छा काम कर रहे हैं मगर मकसद ही अच्छा करने का नहीं है, that is not again intentional act or a moral act. So the act which you are doing, the good act which you are doing, if you are having even intention to do it good, then that is right action or that is moral act. That is to say, whether an act is a moral or otherwise depends upon the intention of the doer. मैं अभी बोला सो एग्जांपल आ गया था। तो जब भी कोई एक इंसान एक्शन कर रहा है तो इट डिपेंड करता है कि उसका इंटेंशन है क्या वो करने में, अच्छा काम कर रहा है कि गलत कर रहा है, कि तो जो भी उन्हें काम कर रहा है क्या वो काम करने में उसका इंटेंशन है, क्या उन्हें जानबूझ को कर रहा है, क्या कोई तो बोलने से किसी के फोर्स से कर रहा है। So we cannot judge them but until unless we think ourselves in their position. या तो हम अपने आप को उनकी जगह पे महसूस करना। मेरे हिसाब से किसी इंसान को अगर पहचानना है तो 8 से 15 दिन या 1 महीना उसके साथ हम रहना, सुबह से शाम तक उन्हें क्या एक्टिविटी करता है, जब उसके साथ अगर हम वक्त बिताएंगे तभी हम उसके बारे में जज कर सकते हैं। वरना 2-4 घंटे में स्कूल में रहने के बाद हमारे साथ में, या 1 घंटा 2 घंटे हम किसी के साथ पढ़ लेने से we cannot judge them, और कभी कभी उनसे मिलने से we cannot judge them and finalize about their own act. Okay, तो यहाँ पे वो भी देखिए क्या बोला, इंटेंशन ऑफ द डूअर भी होना है। 2 men, अब एग्जांपल दिए देखो, 2 men have done exactly the same thing but act of one is moral and that of the another is contrary, means opposite or non-moral we can say. Take an example. For instance, माने example, a man who out of great pity, माने हमदर्दी, sympathy, kindness, humbleness, feeds the poor, and another who does the same but with the motive of winning the prestige. एक इंसान खाना खिला रहा गरीबों पर हमदर्दी जताकर के भाई गरीबों के पास बरोबर खाना नहीं मिलता, हम 3 टाइम दबा को बिरयानी तहारी मार रहे हैं, चिकन मार रहे हैं, चलो खाना खिलाएंगे। That is a moral act he is doing because of his own intention, his own will. और एक इंसान भी कर रहा है but his intention or his motive माने aim और objective is to get prestige, माने रुतबा, इज्जत, और with some selfish end, या खुद के इलेक्शन में ठहरना है तो भी क्या करती, इनकी उनकी मदद कर लेते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं। खैर मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप अच्छा काम करें तो वीडियो बना के डालो, बल्कि 2 चीजें उसमें भी। हम कई बार अलग अलग सोशल मीडिया जैसे कि टकाटक वीडियो, इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी फेसबुक वगैरह है, तो वहां पे हम कई ऐसे पोस्ट देखते हैं कि जहां पर बच्चे कुछ वीडियोस बनाते हैं, गरीबों को मदद कर रहे सो, क्या भी खिला रहे सो पिला रहे सो वीडियो डालते हैं। तो इट 2 चीजें हैं, हमारे समझने के ऊपर डिपेंड है। अगर सामने वाला ये नियत से डाल रहा है कि लोगों को मालूम होना कि मैं हमदर्द हूं, मैं दिलवाला हूं, समझ में आ रहा है, तो दैट इज नॉन मोरल एक्ट। अगर लोगों को ने ये समझ को डाल रहा है कि भाई मैं कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिए, whatever the act I am doing, I'm feeling very happy by feeding or helping the poor, and you too please go on doing this and just imagine the happiness what they will bless you and how you feel when they go on blessing you. यकीन मानिए गाइस, आप ताजुब हो जाते हैं। मेरे को आमतौर पे एक ओल्ड लेडी कर्नाटक कॉलेज के सामने बैठे हुए रहती है, आप कभी गौर करे होंगे, कम से कम मेरे हिसाब से उनकी उम्र 70-80 होंगी, मगर आज तक उनका चेहरा कोई बिदर में नहीं देखा। याद रखिए आप, गोशा पर्दा किसे कहते हैं आप देख लीजिए। तो बूढ़ी औरत है, बेचारे कर्नाटक के सामने नीचे बैठते हैं,
कभी नई कमान का रेयरली आते हैं, मैं ज्यादातर उधर के रोड पे ही बैठती हूँ, खाली यूं मुंडी हिलाते बैठती। तो जब आप उन्हें 10 रुपए देते हैं तो आप ताजुब होते हैं, ऐसा आपके सर के ऊपर हाथ रखकर ऐसा अल्लाह की तरफ देखकर जो दुआ देती ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस व्हाट आई गेट व्हेन आई डू दिस। द बेस्ट, द एवर बेस्ट हैप्पीनेस व्हाट आई फील देयर बाय गेटिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पुअर। आप कभी नहीं समझ सकते गाइस, याद रख लो, क्योंकि गरीब अल्लाह के करीब रहता है। गरीब की बददुआ भी जल्दी लगती है, गरीब की दुआ भी जल्दी लगती है। गेटिंग? तो इसीलिए कभी भी याद रखिएगा, तो ऐसे लोगों से आप ये करिए, और कभी भी अपने आप को सेल्फिश, कभी अपने अंदर सेल्फिशनेस नहीं आना देखिए बस। हम मर जाना मगर हमारे अंदर सेल्फिशनेस नहीं आना। तो ये दोनों acts are different. One is doing for the purpose of pettiness and one is doing for the purpose of getting name and fame. So guys, though the action is the same, the act one is moral and that of the another is non-moral. The reader here out to remember, पढ़ने वालों को ये चीज ध्यान में रखना है। out to remember माने must remember, कैसा भी याद रखना। out to remember the distinction between the two words non-moral and immoral। देखो ध्यान में दे, मैं अभी बता, इससे पहले बताया मैं कि भाई आप कौन सा भी ऐड कर रहे हैं, दिखाने कैसे करें तो नॉन मॉरल नहीं, सॉरी इमोरल नहीं है, जहन में दे, नॉन मॉरल है। नॉन मॉरल और इमोरल में जमीन आसमान का फर्क है, समझ में आ रहा है? गालियां दे देना, झिड़कियां दे देना, किसी को भी अपने से बड़ों से उल्टा बात करना, वो बदअखलाकियत है, वो नॉन मॉरल नहीं, वो इमोरलिटी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी हम बोल रहे हैं, कुछ भी दिखावे कैसे, कौन सा भी हम काम कर रहे हैं, सगे आते घर में कहाँ बोले हम जानी नमाज बिचारे नमाज पढ़ रहे हैं, जरा सर को ना आंटी में को नमाज पढ़ना है, कहाँ बैठ रही वहां जाको नमाज पढ़ रहे हैं, तो आको नमाज पढ़ को धड़ल धड़ल गोदा में आको उनके मुंडिया डाल को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग अ काइंड ऑफ नेम और फेम और द रेस्पेक्ट। उन्होंने बोलना लड़की कितनी नमाजी है, दिस इज व्हाट बीइंग डन गाइस। लड़कियां बुरा ना को मानो, व्हाट आई वॉच, माय फैमिली इज वेरी बिग, मेरा जो खानदान है बहुत बड़ा है, नानियाल दादियाल का। तो जब भी किसी घर को जाता हूँ तो आमतौर पर चीज होती है, हम भी छोटे जब करते थे तो आमतौर पे नमाज के सलाम करना भी जरूरी नहीं है। अगर नमाज के बाद अगर आप सलाम करते हैं और ये महसूस हो रहा सामने वालों के दैट आप नमाज पढ़कर आ रहे हैं, तो भी नमाज कबूल होना मुश्किल मेरे हिसाब से, तो समझ में आ रहा है? तो महसूस होने देना नहीं, हम सलाम नमाज पढ़ को आपको सलाम कर रहे हैं बोल के, आप नमाज पढ़ना एक अलग चीज है, सलाम एक अलग चीज है, मगर नमाज पढ़ को सलाम करना नहीं है। आप पूछ लीजिए कौन से भी, ठीक है? तो ऐसा अगर कहीं जाहिर हो जा रहा है कि आप नमाज पढ़ने की वजह से सामने वाले को सलाम कर रहे हैं को, तो वैसा नहीं मालूम होना, ये जहन में रख दे, ठीक है? पर नमाज जब आप पढ़ रहे हैं सामने वाले को दिखावे के वास्ते नहीं पढ़ना है, मालूम नहीं होना आप नमाज पढ़े बोल के, समझ आ रहा है? हाँ, अगर कोई बोले नमाज पढ़ा सलाम नहीं करते क्या, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है सलाम करना, हम कर भी सकते हैं नहीं भी सकते, हमारे ऊपर डिपेंड। अगर हम करेंगे, अगर गलती से हमारे अंदर सब लोगों का ये बोल रहा बच्ची कितनी नमाज है, जरा भी अंदर फखर आ गया हमारे, तो हमारी इबादत पूरी डुल और ऊपर से गुनाह फुल, समझ में आ रहा है? इसीलिए बोलती हमारे मैथ्स के सर अच्छा बोलते थे कि भाई जो ईमान पे रहेगा टाइट, सुन रही अच्छी तरह सुनो, जो ईमान पे रहेगा टाइट उसकी खबर होंगी वाइट, जो ईमान पे रहेगा टाइट उसकी खबर होंगी वाइट, फरिश्ते बोलेंगे राइट, चलिए जन्नत को आप, समझना है? तो इसीलिए हमको ईमान पे टाइट मजबूत रहना है ईमान के ऊपर, तो ये होगा, ठीक है गाइस? आइए, so the reader here out to remember, okay, it may be that we do not always see good results flowing from a moral act. While thinking of morality, all that we need to see is that the act is good and is done with good intention. माने हम जो ऐड कर रहे हैं अच्छा भी रहना और हमारे इंटेंशन भी रहना। सर कई बार ऐसा होता सर, फिर हम सलाम नहीं करें तो बच्ची नमाज भी नहीं पढ़ रही, क्या है कि हमारे सामने दूसरे हमारी छोटी बहन या दूसरे कोई भी सलाम पढ़ को जाकर नमाज पढ़ को जाकर सलाम करे, तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे को दिखता ना सर, जब कैसा करना, तुम्हारा दुनिया की इज्जत होना है, हैं? Do you want the respect of the world which is going to finish one day? दुनिया तुम्हारा क्या दे सकती, कुछ भी नहीं सकती दुनिया तुम्हारे को, समझ में आ रहा है? दुनिया किसी की नहीं है, समझ में आ रहा है? आज तुम्हारी तो कल फिर तुम्हारे खिलाफ रहती है, ये ध्यान में रख लो, आज तुम्हारे साथ है तो कल तुम्हारे खिलाफ है। दुनिया के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ खुदा के बारे में सोचना। हमारे नबी हमारे से नाराज होती हैं क्या? क्या खुदा मेरे से नाराज होती मेरे कोई काम से? दैट यू नीड टू थिंक। ये दुनिया के बारे में सोचना बेकार है। आई नेवर थिंक अबाउट द वर्ल्ड, जरूरत ही नहीं है मेरे को। दुनिया इज्जत दे नहीं दे, वो इज्जु मंतशा वो जिल्लु मंतशा, माने इज्जत देने वाला भी खुदा है और जिल्लत देने वाला खुदा है, दुनिया के हाथ में कुछ नहीं है, ध्यान में रख लो। सो गॉड अलोन इज द गिवर ऑफ फ्रूट, आगे यहीं जाके देखो, तो खुदा एक ही है जो हमें शानदार हमारा इनाम हमारा तोहफा देने वाले हैं। Okay, so historians have called Emperor Alexander Great
whenever he went in course of his action, he took the Greek language and Greek culture, arts and manners, and today we enjoy the benefits of Greek civilization. See, jab bhi guys, thank you so much all of you for your appreciation and all. Very happy to see you all in this way. तो जब भी अलेक्जेंडर कहीं पे भी कब्जा करने जाते थे तो लोग इन्हें बोले कि पूरी दुनिया को कब्जा करे। अगर अलेक्जेंडर की मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो आप ताजुब हो जाती, ये पूरी दुनिया को मैक्सिमम वर्ल्ड पूरा पूरा कब्जा कर ली, खाली इंडिया और चाइना दो छोड़ के पूरी दुनिया को कब्जा करे थे। समझ में आ रहा है? चाइना और इंडिया दो को छोड़कर पूरी दुनिया को कब्जा करे थे उन्होंने। तो अलेक्जेंडर को ग्रेट इसलिए बोलते हैं कि भाई पूरी दुनिया को कब्जा करे, ये ग्रेट एक अलग हो गया। और एक ग्रेट भी बोलती है उनको, और एक ग्रेट भी बोलती है, मैं बता रहा हूं। मैं अगर आप सुनना चाहेंगे तो उनकी छोटी स्टोरी, एक 2 मिनट की स्टोरी बोलकर आगे बढ़ूंगा, नहीं बोले तो आई गो ऑन कंटिन्यू द सिलेबस गाइस, ठीक है? तो बट द इंटेंशन ऑफ द अलेक्जेंडर बिहाइंड ऑल दिस वाज ओनली कॉन्क्वेस्ट, मतलब उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ दुनिया को कब्जा करना। रिनोन माने बिकम फेमस, हु कैन देयरफॉर से दैट हिज एक्शंस वर मॉरल, तो कौन कहेगा उनके एक्शन मॉरल हैं? इट वाज ऑल राइट दैट ही वाज टर्म्ड ग्रेट बट मॉरल ही कैन नॉट बी कॉल्ड, मगर उन्हें अखलाकी हम क्यों नहीं बोल सकते? ये वजह क्या है? सर उनको ग्रेट बोल रही, सर उनको ग्रेट बोल रही मगर उनके एक्शन को मॉरल नहीं बोलते। कहते सर ऐसा कैसा? एक एक्शन को उनके एक्शन को एक मॉरल ही बोलती, वहां फिर एक बार ग्रेट हुए ना। एक तो ग्रेट पूरी दुनिया को कब्जा करके हुए, और एक ग्रेट क्यों हुए सुन लीजिए। यस टेल ओके। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को कब्जा करे, इंडिया और चाइना बच गया था। तो इंडिया से पहले वो चाइना पे अटैक करना चाहते थे। तो चाइना में खतरनाक रानी थी, उस वक्त क्वीन थी। तो चाइना पे अटैक करने गए नो, तो अटैक करने से पहले वहां की रानी बोली, मालूम होगा कि भाई हमारे पे अटैक करने वाले पूरे पे कब्जा कर लिया, अब हम इंडिया बचे हुए, हमारे पे अटैक करते हैं कैसा भी। अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसा बचना, दुनिया की ताकतवर आर्मी है इनकी और इनसे कोई भी नहीं बचा, पूरे वर्ल्ड को कब्जा कर लिया नो, इन्हें ग्रेटेस्ट कहा जाता है, कैसा करना, परेशान हो गई। उसके बाद बोली कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक बड़ी फोटो लगा कर मेरे, जहां मैं बैठती हूँ दरबार में, मेरे सामने लगाकर बड़ी फोटो लगा दियो बोले। तो सिपाहियां सुने, जाकर अलेक्जेंडर की एक बड़ी फोटो लगाकर सामने रख दिए। सामने रख देने के बाद में रोजाना देखते गए उन्हें, उसको ऑब्जर्व करते गए, चेहरे को, आंखों को, उसके सब, उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करते गए। ऑब्जर्व करने के बाद में जब उसको पूरा उन्हें एनालाइज उसको कर लेने के बाद में एक दफा जब उन्हें बाजार में निकली थी, अलेक्जेंडर का सिस्टम क्या था बोले तो अलेक्जेंडर भिखारी बन के आते थे पहले भिखारी, गरीब, एक ट्रेडर, बिजनेसमैन बन के सरकार जाते थे अलग अलग कंट्रीज को, जाकर वहां का आने का रास्ता, भागने का रास्ता, वहां की मिलिट्री, वहां का सिस्टम कैसा है, पूरा पूरा ऑब्जर्व कर लेते थे। कर लेकर वापस आकर सिपाहियों को वो हिसाब से तैयारी से लेकर आते थे। तो जब अलेक्जेंडर बाजार में आ गए थे, पूरा देख रहे थे, कर रहे थे, ये रानी जा रही थी अपने गाड़ी में, वो जो पहले आते थे ना टांगे, बैठकर जा रही थी, ने देखी उतने में कि ये तो बुढ़ा बुढ़ा है, पूरे बाला व्हाइट लगा लिए, सिर को व्हाइट वाला है, मालूम नहीं होने के लिए, मगर उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। ध्यान में रखो, आप जो चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज्यादा दिल से, बहुत ज्यादा गौर से, दिल से, दिमाग से, वो चीज दिमाग में फिक्स हो जाती है। तो उन्होंने देखे कि भाई ये कहीं अलेक्जेंडर तो नहीं है, अलेक्जेंडर है क्या, ये उनको डाउट हो रहा था। सिपाही को बोला इधर आम यहाँ, बोले सीधा जाना, वो बुड्ढे को पकड़ना, बुड्ढे को पकड़ के ले आके सीधा जेल में डाल देना, कुछ भी नहीं बोलना उन्हें, क्या भी पूछा तो खामोश डाल देना। तो जैसे करा उन्हें सेम लिया, ले जाके डाल दिया जेल में। डाल देने के बाद में 3 दिन तक अलेक्जेंडर के पास कोई नहीं गए। 3 दिन के बाद उसको बुलाए पूरे ताज अपने दरबार में, एक बड़े एक में पूरा फुल हीरे, और एक में पूरे जेवरात, और एक में पूरे सोना, और एक में फुल कॉइन्स, पैसे, चारों बैरला भर के रख दिए सामने। लेगा उसको, बोले संकला दाल को लेकर पूरे हाथों को, पैरों को, आगे अलेक्जेंडर। आने के बाद अलेक्जेंडर आते पहले घुटने टेक के बैठ गए ऐसा सामने। क्यों अलेक्जेंडर, क्या हुआ पूछे? भूख लग रही है, भूख लग रही है, चक्कर आ रही भूख लगकर, 3 दिन खाना नहीं, क्या मजाक है, खाना नहीं, पानी नहीं, 3 दिन भूख लग रही है। बोलने के बाद में ठीक है, ये खाओ जेवरात, ये लो हीरे, ये लियो मोतिया, ये लियो कॉइन सोने के, लियो खाओ, कितना खाते खाओ। तुम इसी के लिए दुनिया पर अटैक करते हो ना, इसी के ऊपर अटैक करते ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम क्या है? सिकंदर आजम, मुस्लिम के थे।
तो खाओ, क्या खाते हैं खाओ बोले। किंग सोलोमन भी बोलते हैं कुछ बुकों में उनका नाम। तो खाओ बोले। कहां से खाता आदमी? जेवरात पैसा एक अलग चीज है, खाना एक अलग चीज है। आलीशान खाने वाला खाना आदमी, ये भारी भारी सुक्के मुर्गिया तले हुए रहते सामने, भारी भारी चीजें खाने वाला आदमी को खाओ बोल रहे, नहीं खाता मुझे माफ कर दो। तो नहीं समझे ये, क्या तुम्हारा ईमान यही सिखाता है कि दूसरों को तकलीफ दें? अरे क्या ले जाता है सिकंदर, तू जब मर जाएगा खुदा को क्या मुंह दिखाएगा कि लोगों को तकलीफ देकर? जब भी तू कोई कंट्री पर अटैक करता है, तो कंट्री पर अटैक करने वाला होता है तो लोगों के दिलों में, उनके जिस्मों में जान तो होती है, मगर उनके अंदर वो खौफ जो इतना ज्यादा होता है कि वो कब मरेंगे, ये एक तरह का खौफ उनके अंदर ज्यादा होता है। इवन हमारे अंदर भी जो जिम्मेदारान होती है, हम भी बेइंतहा डरे हुए, हम भी बेइंतहा परेशान होते हैं, और लोग डर डर कर जीते हैं तो कब अटैक कर पाएगी। और जब तू अटैक करता है, जब तू लूटता है कोई कंट्री को, तो हजारों लाखों लोगों की जान जाती है। क्या तुम्हारा इस्लाम जान लेना सिखाता है? क्या तू पैसे लेकर इस दुनिया में आया था जो पैसे लेकर जाएगा? We have come to this world bare handed, guys, and we have to move with bare handed. माने खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है guys. We are not at all going to take anything. तो जब अलेक्जेंडर माफ कर दियो बोलने के बाद जब ये सब सुनता है अलेक्जेंडर, तो उसका दिमाग, उसका दिल जो है वो चेंज हो जाता है, और अलेक्जेंडर के सामने पतली दाल और रोटी रखी जाती है, और वो पतली दाल 2 दिन की सूखी रोटी को इतनी तेजी से खाता है कि आई कैन एक्सप्रेस यू, आलीशान खाना खाने वाला। खाकर वहां से उसको रानी बोलती है छोड़ दीजिए, इसको जरूरत नहीं हमारे को इसकी, अगर फिर भी ना आकर लड़ता है तो मैं इसके इतना बदअखलाक कोई नहीं है समझती हूँ, को छोड़ दे बोलती है। अब जंजीरों से आजाद कर देती हैं, अलेक्जेंडर वापस आ जाती हैं अपने साथियों के पास। हो गई बॉस तैयार, हो गई क्या पूरी बॉस तैयारी? चलिए बॉस अटैक करते हैं चाइना के ऊपर। तो नहीं, अब अटैक करना न को, आज के बाद अटैक नहीं, कुछ नहीं, आज के बाद हम एक सादी सीधी जिंदगी जीएंगे, हम आज के बाद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम जो भी नुकसान पहुंचा रहे इसके अंदर कई लोगों के जाने चले जा रही हैं, इसीलिए वी हैव टू गो ऑन लिविंग अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। सर मैं लीव नहीं ले रहा बोलिए, सलीम सर वही पूछने करेंगे, ठीक है सलीम सर यही पूछने करेंगे फोन किया था, लीव ले रही क्या बोल के, नहीं ले रहा बोल दीजिए, ठीक है। सो सॉरी गाइस। तो जब अलेक्जेंडर वापस आए अपने साथियों के पास, ये बोलने के चलो अब घर को जाएंगे वापस बोले, तो घर को जाने जाते आते रास्ते में बेबीलोनियन कंट्री का नाम था उस वक्त, अब कुछ और नाम है, तो वहां पर उनकी तबीयत बेइंतहा खराब हो गई और ऐसा लगने लगा कि अब मर जाएंगे। तो अलेक्जेंडर ग्रेट अपने मिनिस्टर को बुलाए और बोले कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर रखना। अरे क्या मजाक करेंगे, नहीं तो ऐसा कैसा, तो पूरी दुनिया थू थू करेंगे, आप ब्रिटिश हैं, आप पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत है आपकी, और आप जनाजे के बाहर आता। मैं जितना बोलिया उतना करना, ज्यादा बोलना नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ बताना खत्म। सर वजह क्या है? सर मैं दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा दुनिया का बादशाह होने के बाद, हजारों करोड़ों अरबों खरबों इतने पैसे इतना सोना मेरे पास है कि मैं ही नहीं जानता, उतना सब कुछ होने के बाद भी मैं खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खाली हाथ आया था। हमारे सिर्फ नामाए अमल अल्लाह के पास दिखाए जाएंगे, इसके लिए मेरे हाथ आप बाहर रख दो बोले। तो जब इन्हों मर गए तो इनके हाथ जब बाहर रखे तो पूरी दुनिया इनके ऊपर ताजुब होकर वाकई में अखलाक वाला है, अब बड़ी बात बता के जा रही है जाते आते, इसीलिए इनको क्या करेंगे हम, ग्रेट बोलेंगे बोले अलेक्जेंडर को, क्योंकि पूरी दुनिया को एक सबूत दे दिए, पूरी दुनिया को एक बता दिए एक चीज कि आप कितना भी कमा लो, कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी धोखा दे लो, कितना भी सूदखोरी कर लियो, आप कितना भी पैसा आप करोड़ों रुपए कमा लो, मगर आपके साथ जाने वाला 1 रुपया नहीं है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ आप जाने वाले, ये जहन में रख लियो आप। इस तरह से क्या मालूम है बोलकर चले गए अलेक्जेंडर, इसीलिए उनको और एक बार ग्रेट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इज द लास्ट वर्क ऑफ द मोरालिटी। ओके ठीक है गाइस, तो इसीलिए अलेक्जेंडर को हम उनके एक्शन को हम मॉरल नहीं कहेंगे, मगर उन्होंने ग्रेट थे, वो एक अलग चीज है पूरी दुनिया में हुकूमत करे, बल्कि ग्रेट बोले, इट वाज नॉट इजी टू रूल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा फिर एक बार ग्रेट इसीलिए बोले क्योंकि दुनिया को एक बेहतरीन सबक देके गए। सो इन दिस थर्ड पैरा वी केम टू नो दैट देयर आर 2 acts, 2 different acts. One is done for the purpose of the showing pity over the poor, and one is showing pity over the poor for the purpose of getting prestige or name. So we cannot finalize anybody's act as moral, because whatever the acts being done by the people that are to be done with intention to do good, and that should be released from their own will and wish. If you are showing it for the, if you are doing any good work for the purpose showing others, then that is not at all going to be considered as moral. Okay guys, thank you so much guys. So guys, here we end our class. इंशाल्लाह कल हम खत्म कर देंगे ये चैप्टर, और
नेक्स्ट मंडे को ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, खाली पूरा शुरू हो को खत्म होने तक हंसना आप लोग इंशाल्लाह। कौन सा चैप्टर होगा पहचानिए, चैप्टर नंबर 10 पाई एंड द टर्ड। हंस हंस को पेट में दर्द होना आपके, वैसा चैप्टर पढ़ाता हूँ, फुल मजे लेंगे, ठीक है, फुल मजा करेंगे अपन लोग मंडे के दिन इंशाल्लाह।